Particle Science. Your chapter is combustion and flame. So today topic is flame. You have already learned that combustion is done with vapor and without vapor. All combustion reaction are not produce flame. Means जितने भी combustion reaction होते हैं जरूरी नहीं है कि वो flame को produce करें. Combustion reaction with vapor होते हैं and without vapor होते हैं. When combustion reaction are done by with vapor, we can say that it is a flame. It produces flame. And when combustion reaction is done without vapor, we can say that it is smolder. Example was smolder is coal, charcoal, incense stick. कोल कोयला जो होता है, चारकोल होता है जो जलीली लकड़ी पूरी अच्छी तरह से जल के ऐश में राख में बनती जो जलीली लकड़ी होती है उसको हम चारकोल बोलते हैं. इंसेंस स्टिक होता है जो अगरबत्ती होता है. आपने देखा होगा उसका वेपर फॉर्म नहीं जलता, वो विदाउट वेपर बर्न करते हैं, सिर्फ जलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, स्मॉलर बोलते हैं. फ्लेम का एग्जाम्पल है कैंडल, एलपीजी गैस. आपने ऑब्जर्व किया होगा, ये ऑब्जर्व कीजिएगा, जब कैंडल जब बर्न करते हैं तो उसका फ्लेम उसको हम फ्लेम बोलते हैं. मीन्स उसका जो वेपर फॉर्म होता है वो बर्न करता है. जब कैंडल जलना स्टार्ट होते हैं तो वो वेपर फॉर्म बर्न करते हैं जिससे हमें क्या होता है, लाइट मिलता है. एलपीजी गैस जो गैस आप यूज करते हैं एज अ कुक, उसमें भी आप देखिए वो भी आपका क्या होता है, उसका वेपर फॉर्म चलता है जिससे हमें इसमें ब्लू कलर देखने को मिलता है. इसमें जो कैंडल्स होते हैं बहुत सारे जोन होते हैं, इसको अभी हम आगे पढ़ेंगे. सो द combustion reaction are done by with vapor and without vapor. If combustion reaction are done with vapor, we can say that it is a flame. If combustion reaction is done by without vapor, we can say that it is a smolder. So when the all combustion reaction are not produce flame, जरूरी नहीं है कि जितने सारे combustion reaction है सब flame को produce करें. आपने देखा, और flame तभी produce होता है जब combustion reaction या फिर combustible substance burn करते हैं vaporized form में. मीन अगर किसी का जो combustible substance है उसका vaporized form burn कर रहे हैं तो वो flame को produce करेंगे. In this chapter you have learned the different zones of candle. आपको इस चैप्टर में different zone of candle के बारे में पढ़ना है.
दिस इज योर कैंडल, ये कैंडल है, वैक्स मीन्स मून। इस कैंडल में 3 जोन्स होते हैं, आउटर जोन्स, मिडिल जोन एंड इनर जोन। आप देख रहे हैं आउटर जोन का जो कलर है वो ब्लू है, मिडिल जोन का जो कलर है वो येलो है एंड इनर जोन का जो कलर है वो ब्लैक होते हैं। ये है आउटर जोन ऑफ कंप्लीट कंबशन। ये मिडिल जोन ऑफ इनकम्प्लीट कंबशन एंड इनर जोन ऑफ ऑनबोर्न वैक्स वेपर। So in candle there are 3 zones, zone of complete combustion जिसको हम आउटर जोन बोलते हैं, जहाँ पे आउटर जोन होते हैं उसको वहाँ पे कंप्लीट कम्बशन होता है। जब हम टाइप्स ऑफ कम्बशन पढ़ रहे थे, when we learn types of combustion, there are 2 types of combustion on the basis of oxygen we can classify that complete combustion and incomplete combustion. You can recall that and remember what is complete combustion. Complete combustion is a combustion where the reaction are taking place in excess of oxygen, means complete combustion वो होता है जहाँ पे जो combustion reaction take place कर रहे हैं वहाँ पे excess of oxygen present हो, and incomplete combustion is a combustion where are insufficient amount of oxygen are present. जहाँ पे insufficient amount of oxygen present होता है और वहाँ पे combustion reaction हो रहा है उसको हम बोल रहे हैं कि वो incomplete combustion है। and complete combustion होते हैं जहाँ पे excess of oxygen present हो और वहाँ पे combustion reaction हो। outer zone जो है, जो हमारे कैंडल का जो outer zone है वो complete combustion है। why? because there are sufficient amount of oxygen are present in outer zone, there are sufficient amount of oxygen present, क्योंकि ये डायरेक्ट कांटेक्ट में रहता है एटमॉस्फेयर के, जिससे यहाँ पे सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं और इसका कलर इसलिए हमें ब्लू दिखता है। आप जब ऑब्जर्व करेंगे जो कैंडल का कलर होता है, जो आउटर जोन होता है उसको वो ब्लू कलर का होता है। नाउ जोन ऑफ इनकम्प्लीट कम्बशन, द मिडिल जोन आर इनकम्प्लीट कम्बशन बिकॉज देयर आर इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट। यहाँ पे जो
इनर जोन होते हैं कैंडल के, यहाँ पे इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं जिसके कारण ये इनकम्प्लीट कंबशन होते हैं और इसके लिए हमें यहाँ पे येलो कलर अपीयर होते हैं, दिखते हैं। नाउ द थर्ड जोन इज इनर जोन। हियर देयर इज नो ऑक्सीजन आर प्रेजेंट, मीन्स यहाँ पे लीस्ट ऑक्सीजन एंड नो ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं जिससे हमें यहाँ पे नो रिएक्शन नो कम्बशन, मीन्स यहाँ पे कोई कम्बशन नहीं होता है, यहाँ पे कोई कम्बशन रिएक्शन नहीं होता जिसके कारण हमें यहाँ पे ब्लैक कलर देखने को मिलता है। जो आउटर जोन होते हैं वो हॉटर होते हैं, ये हॉटर पार्ट होते हैं क्योंकि यहाँ पे सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं। जो इनर जोन होते हैं ये मॉडरेटली हॉट होते हैं, यहाँ पे इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं। एंड देन जो इनर जोन है यहाँ ये लीस्ट हॉट होते हैं, क्योंकि यहाँ पे least amount of oxygen and sometimes no amount of oxygen are present. So in candles there are three types of zones. Zone of complete combustion जिसको हम outer zone बोलते हैं, and this zone there are excess amount of oxygen are present. This zone has water part, मीन्स इसको हम वाटर पार्ट बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे एक्सेस ऑक्सीजन एंड सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं जिससे हमें ये ब्लू कलर के अपीयर होते हैं। ब्लू कलर हमें इसमें देखने को मिलता है एंड ये हॉटर पार्ट होते हैं। नाउ जोन्स ऑफ इनकम्प्लीट कंबशन। इनकम्प्लीट कंबशन हमारा मिडिल जोन होता है, यहाँ पे इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं एंड ये मॉडरेटली हॉट होते हैं, मीन्स ज़्यादा हॉट नहीं होते ना ही ज़्यादा मीन्स लीस्ट हॉट होते हैं, मॉडरेटली मीन्स मीडियम है। And zone of no combustion means this is a inner zone of candle, there are least amount of oxygen is present and it is least hot. Out of two ये least hot होते हैं, कम हॉट मीन्स कम यहाँ पे आपको हॉटनेस फील होगा। जब आप फील करने की कोशिश कीजिएगा, जो कैंडल होता है वो जब बर्न करते हैं तो हमें फ्लेम देते हैं। फ्लेम का एग्जाम्पल कैंडल है और आपको डिफरेंट जोन्स ऑफ कैंडल्स फ्लेम इस चैप्टर में पढ़ना है। कैंडल के 3 फ्लेम्स होते हैं, कैंडल के 3 जोन्स होते हैं, आउटर जोन्स, मिडिल जोन्स एंड इनर जोन्स। आउटर जोन्स, मिडिल जोन्स एंड इनर जोन्स। आउटर जोन्स को हम कंप्लीट कंबशन बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं। जब कंबशन रिएक्शन होता है तो यहाँ पे सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, इसलिए हम इसको जोन्स ऑफ कंप्लीट कंबशन भी कहते हैं। और ये जो जोन्स है इस जोन के सबसे हॉटर पार्ट होते हैं। नाउ जोन्स ऑफ इनकम्प्लीट कंबशन, जो
इनर जोन्स होते हैं या फिर जो मिडिल जोन्स होते हैं वो हमारे इनकम्प्लीट ऑफ कंबशन होते हैं। इनकम्प्लीट कंबशन क्या होता है? जहाँ पे इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट हो और वहाँ पे कंबशन रिएक्शन हो, उसको हम क्या बोलते हैं? इनकम्प्लीट कंबशन। तो ये जो मिडिल जोन होते हैं वो हमारे जोन्स ऑफ इनकम्प्लीट कंबशन होते हैं फ्लेम के, एंड ये मॉडरेटली हॉट होते हैं। नाउ द इनर जोन्स ऑफ दिस कैंडल इज there is no combustion because there is least oxygen and there is no oxygen is present। यहाँ पे कम या फिर ना के बराबर ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं, जिसके कारण यहाँ पे कंबशन रिएक्शन नहीं होता। आपने कंबशन रिएक्शन में पढ़ा था कि कंबशन रिएक्शन होने के लिए ऑक्सीजन का प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है तो वहाँ पे कंबशन रिएक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पे इनर जोन में जो ऑक्सीजन होते हैं नहीं प्रेजेंट होते हैं या फिर कम प्रेजेंट होते हैं, जिसके कारण कंबशन रिएक्शन नहीं होता है। इसलिए हम इस जोन को जोन्स ऑफ नो कंबशन भी कहते हैं और इनर जोन्स होते हैं। और जो ये होते हैं एज कंपेयर टू दिस टू जोन्स, दिस इज लीस्ट हॉट। Recall that what we study in this topic. Combustion reaction is done by with vapor and without vapor. When the combustion reaction is done with vapor, we can say that it is a reduced flame. And when combustion reaction is done by without vapor, we can say that it is a small flame. Now, flame have three zones. Outer, middle, and inner. All zones have different color. Outer zone have blue color. We can see that, and when we observe the burning of candle carefully, we can see that there are in outer zone there are a blue color is appear. Now middle, it is yellow in color, and in inner zone there are black color is appear. And outer, we can say that outer zone is a produce complete combustion. And middle zone is produce incomplete combustion. And inner zone is produce no combustion. We can this we can say that it is the types of combustion. In types of combustion, when we study that, we can classify the complete combustion and incomplete combustion on the basis of oxygen supply.
ऑक्सीजन सप्लाई के बेसिस पे जब हम टाइप्स ऑफ कंबशन जब हम पढ़ रहे थे तो ऑक्सीजन के बेसिस में हम टाइप्स ऑफ कंबशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किए थे, which are complete combustion and incomplete combustion. Complete combustion are where the excess amount of oxygen are present. We can say that combustion reaction is complete combustion, and when the combustion reaction is taking place is insufficient amount of oxygen, we can say that is the incomplete combustion. जब combustion reaction insufficient amount of oxygen means जब combustion reaction हो रहा है तो वहाँ पे sufficient amount of oxygen present नहीं है, insufficient amount of oxygen present है, तो हम उसको बोलते हैं कि वो incomplete combustion है. और no combustion was that there is a no oxygen is present. जहाँ पे oxygen present नहीं है उसको हम no combustion बोल रहे हैं. In flame क्या होता है? जब combustion reaction वेपराइज फॉर्म को प्रोड्यूस करे तब वो फ्लेम को प्रोड्यूस करते हैं. जैसे एग्जांपल में कैंडल हो गए, जिसके जोन्स आपको पढ़ने हैं इस चैप्टर में. डिफरेंट टाइप्स ऑफ जोन ऑफ कैंडल फ्लेम आपको पढ़ना है. आपने देखा जो कैंडल है उसका वेपराइज फॉर्म चलता है, मीन्स उसका वेपर फॉर्म चलता है. जब कंबशन रिएक्शन विद वेपर होता है तो उसको वो फ्लेम को प्रोड्यूस करते हैं. एंड फ्लेम हमारा 3 जोन्स के होते हैं, आउटर जोन्स, मिडिल जोन्स एंड इनर जोन्स. आउटर जोन्स जब आप केयरफुली ऑब्जर्व करेंगे कैंडल को बर्न करके आप ऑब्जर्व करिए, या फिर आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जो आउटर जोन्स होते हैं वो ब्लू कलर के अपीयर होते हैं, मीन्स हमें ब्लू कलर के दिखते हैं. जो मिडिल जोन होते हैं हमें येलो कलर के अपीयर होते हैं, येलो कलर के दिखते हैं. एंड जो इनर जोन होते हैं वो ब्लैक कलर के दिखते हैं. और जो आउटर जोन होते हैं वो ब्लू इसलिए हमें दिखते हैं क्योंकि वो कंप्लीट कंबशन है. क्यों? कंप्लीट कंबशन क्या होता है? जहाँ पे एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है. जब एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन वहाँ पे प्रेजेंट है और कंबशन हो रहा है, कंबशन रिएक्शन हो रहा है, तो वो हमारा ब्लू कलर का अपीयर होगा. और मिडिल जोन को हम इनकम्प्लीट कंबशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि वहाँ पे इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रेजेंट होते हैं ऑक्सीजन, और वो इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट होने के कारण जो हमें वो कलर दिखते हैं वो येलो कलर के अपीयर होते हैं. नाउ in inner zone there are no oxygen is present and least amount of oxygen present, that why there is no combustion reaction are performed. जो inner zone होते हैं वहाँ पे कम ऑक्सीजन या फिर लीस्ट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मीन्स लीस्ट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं, या फिर ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट होते हैं, जिसके कारण वहाँ पे कंबशन रिएक्शन नहीं होता है. कंबशन रिएक्शन होने के लिए कंडीशन मीन्स हमें कंबसेबल सब्सटेंसेस, ऑक्सीजन एंड इग्निशन टेम्परेचर का होना बहुत ज़रूरी है. तो इनर जोन में वहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होते हैं, जिसके कारण वहाँ पे कंबशन रिएक्शन नहीं होता है. और जब कंबशन रिएक्शन नहीं होता तो हमें वहाँ पे ब्लैक कलर अपीयर होता है. आप देख सकते हैं कैंडल को बर्न करके. जो आउटर जोन होते हैं वो हॉटेस्ट पार्ट होते हैं, हॉटर पार्ट होते हैं. एंड जो मिडिल जोन होते हैं वो मॉडरेटली हॉट होते हैं. एंड जो इनर जोन होते हैं वो लीस्ट हॉट होते हैं. सो यू कैन know that what is a flame and what are the zones of flame and what are the colors of flame, and why we can say that outer zone is complete combustion and inner zone is incomplete combustion, and middle zone is complete combustion and inner zone is no combustion, because there are oxygen. On the basis of oxygen we can say that outer zone was blue color, middle zone are yellow color and inner zones are black color. Why? Because they are in the amount of oxygen we can classify that. And outer zone is hotter part because there are complete combustion is done, and inner zone is moderately hot because there are incomplete combustion is done, and middle zone is moderately hot because there are incomplete combustion is done, and inner zone is least hot because there are
no combustion is done. So this topic is flame now ended, and in next video we can learn that another part of this chapter, not handle.